لیے, محسن بیگ صاحب کے لیے, نیوز ون کی بندش کے لیے اور اقرار الحسن پر کیے جانے والے تشدد کے حوالے سے اس مظاہرے میں شریک ہوئے ہیں. میں اپنے دوستوں کو جمیل بیگ کے گھر پر جب چھاپا مارا گیا تو اس وقت کوئی بھی FIR درج نہیں کی گئی تھی. FIR اس وقت درج کی گئی جب میڈیا میں, سوشل میڈیا پر, نیشنل میڈیا پر اس کا اظہار کیا گیا کہ انلیگل طریقے سے FIA کے اہلکار بن کر ان لوگوں نے غنڈہ گردی کی ہے اور محسن جمیل بیگ کے گھر پر دھاوا بولا ہے. ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے, ہم نہیں مانتے. ظلم کے یہ ضابطے. جس کے بعد یہ مقدمہ درج کیا گیا اور ظلم یہ دیکھیے کہ اس مقدمے کی آڑ میں پھر ان پر انسداد دہشت گردی کی دفعات لگائی گئی جو سراسر غلط تھی. اور ایڈیشنل سیشن جج نے اپنے فیصلے میں یہ ثابت کیا کہ اس ملک میں اب بھی آئین اور قانون موجود ہے اور ہمیں بھی ان عدالتوں پر پورا یقین ہے کہ وہ محسن جمیل بیگ کو انصاف فراہم کریں گی. میں بات کروں گا غریدہ فاروقی صاحبہ کے اس پروگرام کی جس کی آڑ میں نیوز ون TV کو بند کرنے کی سازش کی گئی ہے اور یہ سازش پیمرا جو کہ حکومت کا اعلی کار بنا ہوا ہے, ریاستی ادارے حکومت کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں اور یہ بدترین مثال ہے. ایسے آمریت میں بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ جمہوری حکومتوں میں اپنے مفادات کے لیے یا ان پر تنقید کرنے والے اداروں کو یا ان افراد کا گلا دبا دیا جاتا ہے. ہم نے یہ مثال اس دور میں دیکھی ہے. اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. قانون کا غیر قانونی استعمال بند کرو, قانون کا غیر قانونی استعمال بند کرو, قانون کا غیر قانونی استعمال بند کرو, قانون کا غیر قانونی استعمال بند کرو. میں بات کروں گا اقرار الحسن پر کیے جانے والے تشدد کی. ریاستی ادارے کیا ایسا ہوتے ہیں کہ وہ ملک کے عوام پر تشدد کرے؟ ہم اقرار الحسن پر ہونے والے تشدد کی بھی بھرپور مذمت کرتے ہیں کیونکہ اس حکومت نے اتنا بیگار پیدا کر دیا ہے معاشرے میں کہ جو آپ دیکھیں کہ یہ اس ملک کی کھوکھلوں کو تباہ کر رہے ہیں, اس ملک کی جمہوری اداروں کو تباہ کر رہے ہیں. کیا کبھی آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ حکومت جو باپ کی حیثیت رکھتی ہے کہ وہ عوام پر اس طرح کا ظلم کرے کہ لا قانونیت کی انتہا کر دی جائے؟ وہ TV چینل ہو, وہ اخبارات ہوں. اور سب سے شرمناک عمل یہ ہے کہ عامر کے دور میں بھی ایسا نہیں ہوا کہ اخبار کے دفتر پر یا نیوز لائن آن لائن نیوز ایجنسی کے دفتر پر جس طرح FIA نے بغیر وارنٹ کے چھاپے مارے, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. ہم یہ وعدے کر دینا چاہتے ہیں حکومت پر کہ اگر حکومت نے یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہتھ کنڈے بند نہ کیے تو پھر نہ صرف یہ احتجاج کا دائرہ ملک بھر میں بڑھے گا بلکہ ہم آئینی اور قانونی راستے کے ساتھ ساتھ ہر وہ اقدامات کریں گے جس کی ہمیں آئین پاکستان اجازت دیتا ہے. میں آخر میں اپنے تمام دوستوں کو بالخصوص نیوز ون کی مینجمنٹ کو, اقرار الحسن صاحب کو اور محسن جمیل بیگ صاحب کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آپ لوگوں کو انصاف کی فراہمی تک نیشنل پریس کلب, RIUJ, PFUJ اور تمام صحافتی کمیونٹی چین سے نہیں بیٹھے گی. آپ لوگوں کا شکریہ. نہیں چلے گی, 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 نہیں چلے گی. دوستو لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی, نہیں چلے گی, غنڈہ گردی کی سرکار نہیں چلے گی, نہیں چلے گی. اب میں درخواست کروں گا سینئر صحافی اینکر پرسن جناب سلیم صافی صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب سلیم صافی صاحب. ہم نہیں مانتے ظلم کے ضابطے, ہم نہیں مانتے ظلم کے ضابطے, لاٹھی گولی
गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दहशतगर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदा जिंदा है, जिंदा है सलाफी जिंदा है, जेलों में जाके जिंदा है, कोड़े भी खा के जिंदा है, इस मुल्क की खातिर जिंदा है, इस आइन की खातिर जिंदा है, हर दौर में देखो जिंदा है, हर जबर के आगे जिंदा है। डॉक्टर साहब और हमारे मीडिया कायदीन, मैं तो सिर्फ आया था शरीक होने के लिए, और आप मुझसे बेहतर आप जानते हैं कि हमने माशाअल्लाह के दौर देखे हैं, लेकिन मैं तो काफ़ी अरसे से ये अर्ज़ करता रहा कि परवेज़ मुशर्रफ के बादशाह में भी मीडिया पे वो खबरें नहीं थी, क्योंकि उनके वतन से जन्म लेने वाले इमरान खान की पीटीआई की हुकूमत में मीडिया पे पाबंदी लगाई गई, और इसमें एक इजाफी चीज़ ये है कि बाकी अखबार में तो मीडिया को सिर्फ एक तरफ से हेड किया जाता था, यानी उसकी जुबाबंदी की जाती थी, लेकिन मीडिया के लिए आज़ादी सांस की हैसियत रखती है और माली वसाइल उसके लिए ग़िज़ा की हैसियत रखती है। इस हुकूमत ने मीडिया को दोनों से महरूम करने की कोशिश की। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते। और उसकी ग़िज़ा को भी बंद करने की कोशिश की, और उसकी सांस को भी बंद करने की कोशिश की, और अब यहाँ तक पहुँचा कि चलो हम जैसे लोग जो शुरू दिन से इसको मोहरा समझते थे, इसको कठपुतली समझते थे, और इसको आज़ादी इजहार का दुश्मन और इसको फाशिस्ट समझते थे, तो हम तो थे ही, लेकिन अब इस हुकूमत की कमज़ोरी देख लीजिए कि इन्होंने उन लोगों पे भी हाथ उठाना शुरू कर दिया है कि जो इनके मोहसिन हैं। मसलन मोहसिन बेग साहब के तरीक़े सहाफ़त से हमें इख्तिलाफ़ हो सकता है, उनके तर्ज़ ज़िंदगी से हमें इख्तिलाफ़ हो सकता है, लेकिन हकीकत ये है कि इमरान खान के जो बड़े बड़े मोहसिन हैं उसमें एक मोहसिन बेग साहब भी है, हम ये सब जानते हैं। लेकिन ये न सिर्फ ये कि उनके ख़िलाफ़ इंतकाम पे उतर आए, बल्कि उनके घर की चारदीवारी के तक़द्दुस को पामाल करने के अच्छा उनके उन बच्चों पे भी हाथ उठाया कि जिन बच्चों ने उसी घर में बैठ के कई मरतबा इमरान खान साहब को खिलाया होगा, पिलाया होगा, उनकी खिदमत की होगी। तो आप अंदाज़ा लगाए कि जिस हुकूमत में मोहसिन बेग जैसे दुश्मनों के मोहसिनों के साथ ये सलूक किया जाता है, तो फिर जो उनके नक़ाद है उनके साथ क्या कुछ नहीं हो रहा होगा। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि इस दौरान इकरारुल हसन साहब जिनका ARY के साथ है, और जो इनके एक लिहाज से मोहसिन चैनल में शुमार होता है, अब उनका और उनकी टीम के साथ जो सलूक किया गया, तो मेरे ख्याल में वो इंडियन मकबूजा कश्मीर में भी कश्मीरियों के साथ नहीं कर सकेंगे। मसलन जो नई चीज़ इन्होंने इंट्रोड्यूस की है, हमने ये देखा है और उसके लिए हम तैयार भी हैं कि आप सहाफ़ियों को जेलों में डालते हैं, माजी के डिक्टेटरों ने भी जेलों में डाला है, और अभी भी हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन इन्होंने एक तरफ ये जो बदतमीज़ी के कल्चर को आम किया, मसलन अगर इकरारुल हसन के को सिर्फ ड्यूटी से रोक दिया जाता, अगर उस पर तशद्दुद किया जाता,
वो भी काबिल मजम्मत था। लेकिन आप देख लीजिए कि उनके साथ जो बदतहजीबी की गई, एक मुसलमान तो क्या एक महज़ब इंसान से भी उसकी तवक्को नहीं की जा सकती कि उनके और उनकी टीम के साथ जो सलूक किया गया। और फिर अभी यही मामला हम मोहसिन बेग साहब के मामले में देख रहे हैं। हम ये नहीं चाहते, हम उस दिन से अल्लाह की पनाह मांगते हैं कि हम इमरान खान साहब या उनके तर्जुमानों से हम कोई रियायत मांगे। हम कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। अब मसलन कल भी ये क्या ड्रामा है कि मोहसिन बेग साहब के ख़िलाफ़ जो केस रजिस्टर्ड होता है, तो केस रजिस्टर्ड होता है 9 बजे लाहौर में, और उसी वक्त पुलिस उधर FIA की टीम उधर पहुंच जाती है। अब हमने देखा है इस दौर में हर सहाफ़ी के घर पे यही हुकूमत हमें बताती है कि यहाँ पे तो कभी दहशतगर्द वो पहन के भी घरों में घुस जाते हैं। अगर इनके पास वारंट होता और कानूनी जवाज़ होता और उसके बाद मोहसिन बेग रिजेस्ट करते तो हम कहते कि भाई उसने ज़्यादती की। अब मेरे घर पे मसलन माजी में ऐसा हुआ है, अभी आज से 2 साल कबल, कि मेरे घर में किसी ने घुसने की कोशिश की है, और तो ये क्या गारंटी थी कि भाई वो FIA वाले हैं और वो मोहसिन बेग के घर में जाके उनको अरेस्ट करना चाहते हैं। हो सकता है उसकी वजह में इसी इस्लामाबाद में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे तो गली मोहल्लों में और पार्कों में हमारे सहाफ़ियों के साथ क्या सलूक होता है। तो जाके एक बंदे के पास ना वारंट है, अगर वो आता है, अब इनके इरादे और भी हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हर तरीका इन्होंने आजमा लिया। अब मोहसिन बेग का कसूर क्या था? मोहसिन बेग का कसूर ये था कि मोहसिन बेग ने एक ये भी इंकशाफ किया और गवाही दी कि जी मेरी मौजूदगी में इमरान खान ने हमीद हारून और मीर शकील और रहमान को अरेस्ट करने का हुक्म दे दिया, या ये था कि वो ये गवाहियाँ दे रहा था कि किस तरीके से ये मीडिया में बदतमीज़ी के कल्चर को आम कर रहा है। तो हम इनसे कहते हैं कि बाकी आपने जो कुछ करना है करें, हमें जेलों में डालना है डाल दें। आप जनरल ज़िया और जनरल मुशर्रफ से बड़े बदमाश नहीं हो सकते, और हमें पता है जेल से आप कितने डरते हैं, हम नहीं डरते। ये लोग खड़े हैं, इन्होंने जेलें काटी भी हैं, और शायद बहुत सारे लोग अपने ऊपर उसको एहसान समझेंगे, लेकिन उनका ये ख्याल है कि जितना मैं जेल से डरता हूँ उतना ये सारे लोग डरेंगे। लेकिन गैरतमंद लोग अगर जंग भी करते हैं तो अपने हदूद के अंदर करते हैं। ये जो आपने सिलसिला शुरू करवाया है कि आसमा शिराजी, गरीदा फारूक, ये इंसान करता है, न एक पाकिस्तानियों की ये रिवायत है और न ये मुसलमानों की रिवायत है। आप नाम लेते हैं रियासत मदीना, और ये भी याद रख लीजिए कि हमारे पश्तो में कि हर चाहता अक़बल वतन कश्मीरी, कि हर किसी को अपना वतन कश्मीर नज़र आता है। तो इसी तरह हमें बिल्कुल एक माँ और बहन और बेटी की हैसियत से आपके ख़वातीन की इज़्ज़त अज़ीज़ है। सबसे ज़्यादा मैंने आप पे तनकीद की है, लेकिन आज तक मुझे साबित कर दे कि मैंने कभी ज़ातियात का मामला उठाया हो इमरान खान साहब का। उनकी किरदार खुशी करेंगे तो ये हर आग जो भी फैलाता है वो इंतहा पसंद, दहशतगर्दी का हो, गालम गलूज का हो, तो वो आग फिर ज़रूर आपके घर तक भी पहुँचती है। दूसरा हम ये कहते हैं इनसे कि आपने जो कुछ करना है तो घरों तक मामले को ना ले जाएं। अब मसलन आपने अगर मोहसिन बेग के साथ करना था, क्योंकि वो तो आपकी तारीफ है कि आप पे जो एहसान करे आप उसको फिर माफ़ नहीं करते। तो मोहसिन बेग की सबसे बड़ी गलती तो ये थी कि उन्होंने इमरान खान पे बेतहाशा एहसान ना ले
हम नहीं मानते हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते। फिर अभी यकीनन आपके खुशामदीद आपको मशवरे दे रहे होंगे मीडिया को दबाने के लिए। न मीडिया हुकूमतें बनाता है और ना गिराता है। वो अगर कुछ और अवामिल ना हो तो पाकिस्तान में मीडिया फिर कुछ भी नहीं कर सकता। ये तुम्हारी गलतफहमी है। तो इसलिए अभी आप ना घबराने की बात करते हैं तो लगता है कि आप खुद घबरा गए, लेकिन किसी और पे बस नहीं चलता तो आप सारा मलबा वो मीडिया पे गिराना चाहते हैं। लेकिन याद रखिए कि मीडिया के साथ ये सब कुछ करने के बावजूद आपका इक़्तिदार बच नहीं सकता, और आप जितना इस मीडिया को दबाएंगे, इस मीडिया की ये फितरत रही है कि उतना ही ये उभरता है, उतना ही इनके जज्बे मज़ीद तवाना हो। आपने एक मोहसिन बेग को गिरफ्तार किया, उसके बाद हर बंदा मोहसिन बेग बनेगा। आपने हामिद मीर का प्रोग्राम बंद करवाया तो हर बंदा हामिद मीर बनेगा। आपने इकरार तो हर जर्नलिस्ट फिर इकरार हसन बनने की कोशिश करेगा। तो जो ये बाहर से मुख्तसर दौरे पे आए हुए ये आपके मुशीर हैं आपको गुमराह करने के लिए, ये न पाकिस्तान से वाकिफ़ है और न इन वर्कर्स की ताकत से वाकिफ़ है, और न पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी के लिए जद्दोजहद से वाकिफ़ है। इसलिए वो आपको गुमराह कर रहे हैं। जिनकी आपने तनख्वाहें बंद कर दी, जिनके आप लोगों ने रोज़गार छीन लिया, जितने हमसे ज़्यादा जो हम जैसे बेनिफिशरी है इस वक्त, बदकिस्मती से आज़ादी सहाफ़त की जद्दोजहद में हमारा हिस्सा न होने के बराबर है। लेकिन जो वर्कर्स हैं, आपने अगर इन वर्कर्स को इनको बेरोज़गार तो कर दिया, पहले भी उनकी बुरी हालत थी, तो आप याद रखिए कि ये मीडिया के और हमारी जो फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और इनके जो वर्कर्स हैं, ये आपके पीटीआई के बर्गर खाने वाले सोशल मीडिया के मुजाहिदीन जैसे मुजाहिदीन नहीं है। ये मीडिया को दबाने की ये कोशिश छोड़ दें। कानून के रास्ते से जो कुछ आप कर सकते हैं आप करें बिल्कुल। मसलन ये क्या तमाशा है, जिसने किताब लिखी है आज तक आपने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। आपने खुद उस किताब पे स्टडी सर्कल करवा के अपने बनी गाला में सबसे पहले तो ये चीज़ें आपने हमजा अली अब्बासी से लीक करवा दी। आपके वज़रा जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, आप करें क्रॉस द बोर्ड सबके खिलाफ इस बदतहजीबी के कल्चर को हम भी ख़त्म करना चाहते हैं। आप करें क्रॉस द बोर्ड सबके खिलाफ कानून की कार्रवाई। और फिर आपने ये फेमरा किस लिए बनाया हुआ है? अब अगर वहाँ पे कोई वायलेशन, फेमरा को आपने हाथ की चड़ी बना दिया है, तो अगर कानून की तरफ नहीं आएंगे इमरान खान और इस मुल्क को शहर नापुरसान बनाएंगे, तो मैं खुसूसन उन लोगों से कहता हूँ जो इमरान खान कि शायद इमरान खान तो फिर लंदन चला जाएगा, लेकिन याद रखिए कि हम इस मुल्क में रहने वाले हैं, इस मुल्क में जिएंगे, इस मुल्क में मरेंगे, और पहले भी मुकाबला किया है और अब भी मुकाबला करेंगे। और ये जो हमारी क़यादत है, ये जो फैसला करेंगे, तो हम जैसे लोग अदना वर्कर बन के इनकी क़यादत में हर तरह की जद्दोजहद के लिए तैयार हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका। सहाफ़ियों के हकूक़ की जंग लड़ी साबिक़ सदर PFUJ जनाब अफजल भट्ट साहब से कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। जिंदा है साहबी, जिंदा है, जिंदा है साहबी, जिंदा है, जिंदा है साहबी, जिंदा है, हर दौर में देखो, जिंदा है, हर दौर में देखो, जिंदा है, हर जबर के आगे, जिंदा है, हर जबर के आगे, जिंदा है, जेलों में जाके, जिंदा है, जेलों में जाके, जिंदा है, घोड़े भी खा, घोड़े भी खा के, जिंदा है, इस मुल्क की खातिर, जिंदा है, इस मुल्क की खातिर, जिंदा है।
आईन की खातिर जिंदा है, आईन की खातिर जिंदा है, अपने हक की खातिर जिंदा है, जरा प्यार से बोलो, जिंदा है, जरा धीरे बोलो, जिंदा है, जरा धीरे बोलो, जिंदा है, ललकार के बोलो, जिंदा है, ललकार के बोलो, जिंदा है, ललकार के बोलो। जदोजहद तेज हो, जदोजहद तेज हो, क्या चाहते हैं? हक दरअसल ने कहे कि इसके बाद हम सुपर मार्केट जाएंगे, रैली लेकर फिर वापस आएंगे। बैंडों वाले लोग जो है ना उनको उधर आगे कर जय साहब आगे आ जाए। पता है मुझे। ये थोड़ा पीछे कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज साथियों, आज PFUJ के सदर शहजादा जुल्फकार और सेक्रेटरी जनरल नैसर जैदी की अपील पर पाकिस्तान भर में यौम एहतजाज मनाया जा रहा है। आप जानते हैं कि इसी एक हफ्ते के दौरान जो 3 बड़े अटैक हुए पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर, जिस तरह प्रेस फ्रीडम पर 3 बम गिराए गए, उसकी मिसालें माजी में बहुत कम मिलती हैं। कल आपने देखा कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर जहां दुनिया भर के एम्बेसडर मौजूद हैं, वहां रोजनामा जिना और ऑनलाइन के एडिटर इन चीफ के साथ जिस तरह उसके खिलाफ रियासती ताकत का इस्तेमाल किया गया, पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी अखबार के एडिटर इन चीफ के साथ, किसी न्यूज एजेंसी के एडिटर इन चीफ के साथ ऐसा नहीं हुआ कि उसके खिलाफ सुबह 9 बजे दरखास्त दी गई हो। पीका एक्ट ये कहता है कि अगर किसी के खिलाफ दरखास्त दी जाती है तो फिर पहले उस पर एक नोटिस देकर दफ्तर बुलाया जाता है, फिर दूसरा नोटिस भेजा जाता है, फिर तीसरा नोटिस भेजा जाता है, तब जाकर FIR दर्ज होती है। मैं गिरफ्तारी की बात नहीं कर रहा, लेकिन कल जो कुछ जहां यहां हुआ,
हुकूमत के अब तक के तमाम इक़दामात को देखकर हम ये समझते हैं कि एक सोचे समझे मंसूबे के तहत ये दरखास्त FIA लाहौर में दी गई। दरखास्त देने वाला फेडरल कैबिनेट हाउस में रहता है, जिसके खिलाफ दरखास्त है वो इस्लामाबाद में रहता है। लेकिन लाहौर में दरखास्त देने का मतलब अब हमें समझ आ रही है कि जब हमने देखा कि किस तरह मोहसिन बेग पर बेईमाना तशद्दुद किया गया, उसके बेटे को 10 घंटे तक अगवा किए रखा गया, फिर उसकी गिरफ्तारी शो की गई। इससे आपको समझ आना चाहिए कि अगर वो सुबह यहाँ से मोहसिन बेग साहब को ले जाते तो उन्होंने यहाँ से गायब होना था। इस्लामाबाद की FIA ने कहना था हमें नहीं पता मोहसिन बेग किधर है। इस्लामाबाद की पुलिस ने यह कहना था कि हमें नहीं मालूम कि मोहसिन बेग किधर है, क्योंकि FIA की उस टीम का अभी तक कोई ऐसे शवाहद नहीं मिले कि उन्होंने लोकल पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट की हो कि हम लाहौर से आए हैं और मोहसिन बेग को गिरफ्तार करना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि यहाँ से लाहौर ले जाते हुए रास्ते में ये मोहसिन बेग के साथ कुछ भी कर सकते थे। चीजों से अंदाजा होता है कि अगर वो हुक्मरान जो आईन और कानून पर अमल दरामद का सबक देते हैं, जब वो गैर कानूनी रास्ता इस्तेमाल करते हैं, वो हुक्मरान जो रियासती ताकत का इस तरह इस्तेमाल करते हैं, तो उसके पीछे को बड़ी साजिश जरूर होती है। इसलिए मोहसिन बेग के खिलाफ जो मुकदमा लाहौर में कराया गया, अगर खुदा न खास्ता कल वाला ये मिसहैप ना होता, जिसके बाद मीडिया को पता चल गया, सोशल मीडिया को पता चल गया कि मोहसिन बेग के घर की चादर और 4 दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ इस्तेमाल किया गया है। हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते, हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते। शायद हम आज के दिन तक मोहसिन बेग को तलाश कर रहे होते, हम आज भी ये मुतालबा कर रहे होते कि मोहसिन बेग की फैमिली को बताया जाए कि मोहसिन बेग किधर है, जिना के वर्कर को बताया जाए मोहसिन बेग किधर है, ऑनलाइन के वर्कर को बताया जाए कि मोहसिन बेग किधर है। इसलिए मैंने कल भी मुतालबा किया था कि रियासत इंसाफ के लिए होती है। जब रियासत इस तरह लाकानूनी करती है तो फिर खुदा के बाद पाकिस्तान की अदालतों से हमें उम्मीद है। चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस, नोटिस लो, चीफ जस्टिस, नोटिस लो, चीफ जस्टिस, नोटिस लो, मोहसिन बेग को रिहा करो, मोहसिन बेग को रिहा करो, मोहसिन बेग को रिहा करो। इसलिए चीफ जस्टिस साहब को इसका नोटिस लेना चाहिए। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब आप समझते हैं कि आप बेगुनाह हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि कल आप लाहौर में थे, लाहौर में आपने FIR दर्ज कराई, मोहसिन बेग को आप लाहौर ले जाना चाहते थे। अगर आप ये समझते हैं कि हमारे खदशात दुरुस्त हैं, तो खुद सुप्रीम कोर्ट को लिखे कि इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए, ताकि वो कमीशन फैसला करे कि हमारे खदशात दुरुस्त हैं या आपके दावे दुरुस्त हैं। इसलिए हम ये समझते हैं कि मोहसिन बेग पर कल जिस तरह के करीब मोहसिन बेग का मेडिकल कराया गया, कभी उसे एक सड़क पर घसीटा गया,
कभी दूसरी सड़क पर घसीटा गया, कभी तीसरे चौराहे पे घसीटा गया। शेम शेम इससे वाज़ा होता है कि हुकूमत का मकसद क्या था। इसलिए अजीज दोस्तों, मैं आपकी वसातत से मोहसिन बेग साहब, उनकी फैमिली और रोजनामा जना और ऑनलाइन के वर्कर्स को ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि जब तक मोहसिन बेग साहब के खिलाफ ये रियासती जबर का इस्तेमाल बंद नहीं होता, उस वक्त तक RIUJ, PFUJ और नेशनल प्रेस क्लब आपके साथ खड़ी है। जाति गाली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दहशतगर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अब आ जाए, इसी तरह का एक वाकया कराची में होता है। आपने देखा होगा कि ARY के एंकर जो प्रोग्राम रोड शो करते हैं, इकरारुल हसन, वो अपने शो के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ दफातर में जाकर अपने नुक्ता नजर के मुताबिक वहां होने वाली खराबियों को बयां करते हैं। लेकिन जिस तरह इकरारुल हसन को यरगमाल बनाया गया, और सिर्फ इकरारुल हसन को यरगमाल नहीं बनाया गया, ये पाकिस्तान में इस तरह के शिद्दत की मिसाल किसी सहाफी पर नहीं मिलती। फिर उसे बरहना किया गया, शेम 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 उसके सर से खून के फवारे छूट रहे थे। इकरारुल हसन कहता है कि मेरी वो कमीज जो खून से लथपथ थी, उसी से मेरी आंखों पर पट्टी बांधी गई। शेम शेम और उसे कहा गया कि सारे कपड़े उतार दो। शेम शेम उसकी शलवार जबरदस्ती उतरवाकर, कमीज उतरवाकर मुख्तलिफ एंगल से उस बरहना करके उसकी तस्वीरें बनाई गई। शेम शेम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते, हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते। इकरारुल हसन के साथ जो कुछ हुआ, मैं आप लोगों की वसातत से इकरारुल हसन को, उसकी टीम को और अपने ARY के साथियों को ये यकीन दिलाता हूं कि हम पहले भी पाकिस्तान में जहां किसी जर्नलिस्ट पर जुल्म होता है, हम उसके साथ खड़े होते हैं। हम इस मामले में भी इकरारुल हसन और ARY के साथ खड़े होंगे। इसी तरह जो तीसरा वाकया हुआ, News1 TV चैनल का मामला है, जहां गरीदा फरूकी अपना शो कर रही थी। उसमें 1.5 मिनट का एक शॉट ऐसा आया जिस पर हुकूमत को इतराज है, क्योंकि मैं हुकूमत की बात नहीं करता, हम पढ़े लिखे लोग हैं। RIUJ ने, PFUJ ने, नेशनल प्रेस क्लब ने हमेशा पाकिस्तान की सियासी जमातों से अपील की है कि खुदारा एक दूसरे की खवातीन पर कीचड़ मत उछालो। हम तहरीक इंसाफ से भी कहते रहे, हम मुस्लिम लीग नून से भी कहते रहे, हम पीपल्स पार्टी से भी कहते रहे कि अपनी सियासत की कुछ हदूद क़यूद का तय्यद कर लो। खवातीन, माएँ बहनें सबके लिए साझी होती है, लेकिन यह हुकूमत या दूसरी हुकूमतों ने हमारी बात न सुनी। लेकिन जब उनके घर की बात आती है तो फिर उन्हें अखलाकियात याद आ जाते हैं। इसलिए मैं आज भी PFUJ की तरफ से, RIUJ की तरफ से, नेशनल प्रेस क्लब की तरफ से हुकूमत को
अपोजिशन को, पाकिस्तान की सियासी जमातों से ये अपील करता हूं कि खुदारा अपने इक़्तिदार के खेल में ख़वातीन का मजाक मत उड़ाया करो। आओ, कोई ज़ाब्ता अखलाक बनाना चाहते हो, आज से शुरू करो, हम आपके साथ होंगे। अगर कार्रवाई करना चाहते हो, हमारे जिस जल्लिस पर एतराज है हम उसको आपके हैंड ओवर करेंगे, लेकिन जिस वजीर ने आसमा शिराजी की किरदार कुशी की उसे भी आपको कानून के हवाले करना होगा। जिसने गरीदा फरूकी की किरदार कुशी की उसे भी आपको पुलिस के हवाले करना होगा। इसलिए आ जाए, अगर इस खेल को खत्म करना चाहते हैं तो हम एक कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। लेकिन अजीज साथियों, आप जानते हैं कि हुकूमतें फेक न्यूज की पैदावार होती है। फेक न्यूज वजारत इत्तलात से जन्म लेती है और वही दफन होती है, उसका और कोई सोर्स नहीं होता। इसलिए जब हम बात करते हैं, कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, जब हम प्रेस फ्रीडम की बात करते हैं, तो हमें ताना दिया जाता है तो हम तो फेक न्यूज खत्म करना चाहते हैं, आप हमारे साथ तामन नहीं करते। इसलिए अजीज साथियों, न्यूज़ वन को ये प्रोग्राम हुआ, पैमरक ने नोटिस जारी कर दिया। मैंने पहले भी कहा था कि हमने लीगल कोर्स को कभी अपोज नहीं किया। हम ना अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं, ना किसी और को समझते हैं। इसलिए हमने तो मार्शल लॉ की अदालतों को नहीं मानते थे, लेकिन उनका भी सामना किया, वहां भी पेश होकर अपनी बेगुनाही साबित करते थे। इसलिए हमने हमेशा कानून, जिसे को हम मानते हो या ना मानते हो, जब पाकिस्तान के आईन का हिस्सा कोई लॉ बन जाता है तो हम उस लॉ के अंदर रहना अपने लिए बाइस फख्र समझते हैं। इसलिए जब न्यूज़ वन को नोटिस जारी किया गया, गलत था या ठीक था, न्यूज़ वन उसके लिए अपनी कानूनी जंग लड़ रहा था। लेकिन फिर रियासती ताकत का इस्तेमाल करते हुए केबल ऑपरेटर्स के जरिए पूरे पाकिस्तान से या तो न्यूज़ वन को बंद करा दिया गया या उसके नंबर चेंज कर दिए गए। अजीज साथियों, ये 3 वाकयात इंडिविजुअल नहीं है, इनको इनफरादी तौर पर या इदारों के साथ वाकयात न समझा जाए। ये पाकिस्तान के मीडिया वर्कर के लिए, पाकिस्तान के सहाफियों के लिए, प्रेस फ्रीडम की बात करने वालों के लिए एक पैगाम है। आप सब जानते हैं, और कोई बुरा ना माने, कि ये तीनों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई, न्यूज़ वन में से आप कौन नहीं जानता कि ताहिर खान साहब एक लंबा अरसा तक प्राइम मिनिस्टर की मीडिया टीम का हिस्सा रहे और उसके कप्तान रहे। आज उसी न्यूज़ वन को टारगेट किया गया। ARY के हवाले से उसकी अपनी पॉलिसी है, आपको मुझसे उसमें एतराज हो सकता है, लेकिन उसकी पॉलिसी आप सब जानते हैं। उसकी टीम को बरहना करके, नंगा करके, तस्वीरें बनाकर पैगाम दिया गया। फेडरल कैपिटल में रहने वाले 2 इदारों के एडिटर इन चीफ को दिन दहाड़े उसके गेट खुलाकर चादर और 4 दीवारी का तकद्दस पामाल करने के बाद एक पैगाम दिया गया कि अगर मोहसिन बेग महफूज नहीं है, अगर ताहिर खां का इदारा महफूज नहीं है, अगर ARY महफूज नहीं है, तो पाकिस्तान के मीडिया वर्कर्स और पाकिस्तान के सहाफियों को खुद सोचना होगा कि हमने अब अपनी प्रेस फ्रीडम का किस तरह करना है। अजीज दोस्तों, इसलिए मैंने कल भी कहा था कि ये तीनों वाकयात, ना ये मोहसिन बेग पर हमला है, ना ये इनवारुल हक पर हमला है, ना ये न्यूज़ वन की बंदिश है, ये प्रेस फ्रीडम पर अटैक है और यह हम सब के लिए मैसेज है। इसलिए पाकिस्तान भर के मीडिया वर्कर्स को हुकूमत के इरादे भांप कर समझना होगा
अपनी इस आज़ादी को जो हमारे बड़ों ने कोड़े खाकर हासिल की थी, जेलों में जाकर हासिल की थी, शहीद किले में जाकर हासिल की थी, उसकी हिफाजत के लिए कमर बस्ता होना होगा। और आज PFJ की कॉल पर पाकिस्तान भर से मैसेज हुक्मरानों को चला गया है कि आपके इरादों का हमें पता है, अगर आपने अपने ये इरादे तब्दील ना किए तो इंशाअल्लाह ताला जिस तरह हमने जनरल ज़ियाउल हक के दौर में, जिस तरह परवेज मुशर्रफ के दौर में, हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते, हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते, जिस तरह हमने जनरल ज़ियाउल हक के दौर में, जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में, सिविल हुकूमतों के दौर में प्रेस फ्रीडम का दिफा किया था, आज भी इंशाअल्लाह ताला उसी अज़म के साथ मैदान में मौजूद हैं और प्रेस फ्रीडम पर कोई आंच नहीं आने देंगे। एक मरतबा फिर आप हजरात का शुक्रिया। अगर और मैं उम्मीद रखता हूँ कि अगर कल अदालती कार्रवाई हम देख रहे हैं, कल हमारे केस मोहसिन बेग साहब के हवाले से अदालतों में मौजूद हैं, उसके बाद हम जो भी लाहे अमल देंगे आप सब लोग इसे अपनी जंग समझते हुए यहाँ मौजूद होंगे। एक बार अभी शाह साहब थोड़ी सी बात करेंगे, फिर अभी हम रैली की सूरत में सुपर मार्केट तक जाएंगे और फिर वहाँ से वापस आकर यहाँ पर हमने अपने एहतियात का काम करेंगे। जी अब मैं दरख्वास्त करूँगा सीनियर सियासी रहनुमा डॉक्टर इसरार साहब से, आप सब दोस्त देख रहे हैं कि उनको मीडिया की आज़ादी के हवाले से कितना दर्द था और वो पहुँचे हैं, हम उनके शुक्रगुजार भी हैं। उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। थोड़ा पीछे पुरानी सहाफ़ी साहिबान, मैं फख्र से कहता हूँ कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ की आज़ादी के लिए, सहाफ़त की आज़ादी के लिए मैंने अपनी भरपूर जवानी किले में गुजारी, मैंने जेलों में गुजारी। मैं ज़ियाउल हक के 10 साल या जेल में रहा या मफरूज़ी रहा। मैंने ज़िंदगी में कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया आमराना सोच के साथ। और उसके बाद आज इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ और अदलिया की आज़ादी के लिए ये आपके साथी और ये कैमरे गवाह हैं। मैं आज व्हील चेयर पर आया हूँ, 6 फुट का मत का बंदा था और मैंने इस मुल्क में तब्दीली का नारा लगाकर मैंने सोचा कि तब्दीली आएगी। मैंने भरपूर इक़्तिदार छोड़कर 40 साल की रफ़ाकत छोड़कर मैं इमरान खान के साथ गया और इमरान खान ने मुझे एडिशनल सेक्रेटरी पाकिस्तान बनाया और आज ये जुल्म मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, इस जुल्म का हिस्सा नहीं बन सकता। माहिर सहाफ़ियों को जो वाहिद आवाज़ है इस मुल्क में नौजवानों की, जो बेचारे बेरोज़गार फिर रहे हैं, जो फाका मस्ती का शिकार है, ये जो बोलते हैं आप इन पे भी जुल्म करें, आप इनकी भी आवाज़ करें। मैं बरमला भट्ट साहब आपके साथ खड़ा हूँ और आज तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान करता हूँ और कुफारा अदा करता हूँ कि मेरे मौला मुझे इस जुल्म के साथ कम अज़ कम मैं इस जुल्म का हिस्सा अपने आधे वजूद के साथ नहीं बन सकता, इस जुल्म का हिस्सा इस टूटे हुए हाथ के साथ नहीं बन सकता। मैं आपके साथ हूँ, आपकी जद्दोजहद के साथ हूँ, मैं हमेशा आपके साथ रहा हूँ। इसलिए मुझे इक़्तिदार का रौब नहीं, मैंने पीपल्स पार्टी का इक़्तिदार भरपूर इक़्तिदार में छोड़ा था। तुम एक मरतबा इमरान खान इक़्तिदार में आओ या 10 मरतबा आओ, खुदा की कसम तुम जुल्म करोगे तो हम तो तुम्हारे जुल्म का रोकेंगे। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, आपने मुझे मौका दिया अपने इजहार करने का। मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ। वो मैं सहाफ़ी नहीं हूँ लेकिन सियासी कारकुन हूँ। मैं खूब की जंग लड़ता रहा हूँ और आप ही के साथ लड़ता रहा हूँ और आपके साथ
तमाम दोस्त अभी आ जाए, सब दोस्त रैली निकालेंगे हम और सब दोस्त आ जाइए, बैनर आगे ले आइए। बैनर आगे कर खवातीन